Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the last and final part of this series of tutorials, which is about the triangulation and traversing. We have completed our 5 parts of this series of tutorials. In first part, we have discussed the basic concept of the triangulation and the observation, the angle measurements. कि ट्रायंगुलेशन क्या होता है और उसमें जो है प्रैक्टिकली फील्ड से हमने किस तरह एंगल्स को मेजर करना होता है. In second part, we have discussed the angle adjustment, the angle which we observed at the field, उसको फिर कुछ adjustments apply करनी होते हैं. So we have discussed the 3 types of the adjustment. At part 3, we have discussed the baseline measurement and the correction which need to be applied to the measurement of the baseline कि आपके पास जो है corrected length आ जाए. Then in part 4, we have discussed some calculation which were about the angle correction, whole circle bearing calculation, the calculation of the reduced bearing and the calculation of the lengths. ठीक है. At part number 5, we have discussed the calculation of the consecutive coordinates and the corrections which we have done through Bowditch rule कि हमारे पास जो consecutive coordinates आ जाते हैं उसको फिर जो है हमने correct करना होता है. ठीक है. Now in this final part of this series of tutorial, we will discuss the independent coordinates and then the computation of the area, which is our key objective. ठीक है. Basically survey में हम क्या करते हैं, we are defining या we are determining the relative position या the independent position या the absolute position of different points on the surface of earth. That is called survey. और फिर वो हम क्यों करते हैं, क्यों हम जो है पोजीशन डिफाइन करते हैं किसी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन या इंडिपेंडेंट पोजीशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया कि ऑन द अर्थ सरफेस जिस एरिया में हम इंटरेस्टेड हैं उसका हमने एरिया फाइंड करना होता है. ठीक है. सो नाउ एट दिस ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स एंड द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया फ्रॉम द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. सो फार फ्रॉम द प्रीवियस 5 पार्ट्स we got the corrected consecutive coordinates for our area. ठीक है. ये उसके corrected consecutive coordinates हैं, mean the sum of northing latitude is equal to the sum of the southing latitude and the sum of the easting departure is equal to the sum of the westing departure. These are the corrected consecutive coordinates. Now we have to calculate the independent coordinates from these consecutive coordinates and then we will at the end we will calculate the area. So first let's discuss the basic difference between the consecutive coordinates and independent coordinates या relative coordinates and absolute coordinates. ठीक है. हमारे पास ये एरिया है जो हमारा रफ स्केच है हमारी एरिया का which is bounded by 10 boundary stations. ठीक है. ये ABCD उसके boundary stations हैं. AB line, BC line, CD line and so on. These are the boundary line या इसको traverse lines कहते हैं. AB line जो था that was our base line. ठीक है. तो ट्रायंगुलेशन में हमने क्या करना होता है, किसी एक साइड को प्रैक्टिकली मेजर करना होता है, फिर उसको हम डिफरेंट करेक्शंस अप्लाई करते हैं एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द बेस लाइन. बाकी ये जो 42 एंगल्स हैं हमारे पास, इन सब एंगल्स को हमने प्रैक्टिकली मेजर करना होता है. ठीक है. by method of reiteration which we have discussed in the previous tutorials. Now from these measurements then we calculate the consecutive coordinates and at the end we calculate the independent coordinates. Okay. See, जब हम position of B define करते हैं with respect to A, position of C define करते हैं with respect to B, position of D define करते हैं with respect to C. So these are called consecutive coordinates या these are called relative coordinates कि आप एक पॉइंट को with respect to the previous point define कर रहे हैं. For example, E जो है वो D से कितना साउथ के तरफ है और कितना फॉर एग्जाम्पल ईस्ट के तरफ है, या F जो है वो E से कितना वेस्ट के तरफ है, कितना साउथ के तरफ है. तो हर एक पॉइंट को हम प्रीवियस पॉइंट से डिफाइन कर रहे हैं. दीज आर कॉल्ड consecutive coordinates या these are called relative coordinates. ठीक है. अच्छा, independent coordinates क्या होते हैं? अगर हम एक common axis consider कर ले, for example this is the north axis and suppose this is the east axis, first quadrant हम consider कर देते हैं. ठीक है. और ये हमारे पास एक common origin है.
इसके कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल हम 0 0 लेते हैं, दिस इज द कॉमन ओरिजिन। अब इन सब पॉइंट्स को, ये सारे बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं, इनकी पोजीशन हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉमन ओरिजिन। इन सब पॉइंट्स की हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉमन ओरिजिन। दीज कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स या दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप एक कॉमन ओरिजिन से डिफाइन कर लें तो पूरा ट्रेवर्स जो है वो एक क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड दी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट यू विल हैव टू एज्यूम किसी एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो है उसको आपने एज्यूम करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर देते हैं कि सपोज दैट इज 1500 एंड 2500। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं, थोड़ा सा लार्ज वैल्यू होना चाहिए कि सारे पॉइंट्स जो है वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर देता हूँ कि ए जो है वो इस कॉमन ओरिजिन से 1500 फीट, फॉर एग्जांपल 1500 फीट नॉर्थ की तरफ है और 2500 फीट ईस्ट की तरफ है। तो ए पॉइंट का जो पोजीशन है वो मैंने डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉमन ओरिजिन। अच्छा, अब बाकी पॉइंट जो है वो हमने कैलकुलेट करने हैं। फॉर एग्जांपल बी जो है वो ए से नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट की तरफ है। तो अब बी इस कॉमन ओरिजिन से उसका नॉर्थ और ईस्ट क्या होगा। अब देखें, बी ए से नॉर्थ की तरफ है, तो अगर ए को मैंने 1500 फीट एज्यूम किया है तो बी का इंडिपेंडेंट नॉर्थ इस कॉमन ओरिजिन से क्या होगा, वो ए से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, जितना बी पॉइंट ए से नॉर्थ की तरफ है। तो बी का कंसेक्यूटिव नॉर्थ ए के इंडिपेंडेंट नॉर्थ के साथ ऐड कर लें, यू विल गेट द इंडिपेंडेंट नॉर्थ ऑफ बी। ठीक है, बी जो है वो ए से ईस्ट के तरफ है, मतलब ए के लिए हमने 2500 एज्यूम किया है। अब बी फर्दरली ईस्ट के तरफ है, तो बी इस कॉमन एक्सेस से कितना होगा ईस्ट के तरफ। तो ए के ईस्ट के साथ बी का ईस्ट जो है वो ऐड कर लेंगे, वी विल गेट द इंडिपेंडेंट डिपार्चर या द इंडिपेंडेंट ईस्ट ऑफ बी। ठीक है, सिमिलरली सी जो है वो बी से नॉर्थ के तरफ है और वेस्ट के तरफ है, मतलब सी फर्दरली ऊपर है बी से, तो वो इस कॉमन ओरिजिन से कितना ऊपर होगा। तो बी के इंडिपेंडेंट नॉर्थ के साथ सी का कंसेक्यूटिव नॉर्थ ऐड करेंगे तो वी विल गेट द इंडिपेंडेंट नॉर्थ ऑफ सी। अब देखें, सी क्या है, वेस्ट के तरफ है, एक्सेस की नजदीक है, तो इसका ईस्ट क्या होगा, वो बी के इंडिपेंडेंट ईस्ट से हम सी का कंसेक्यूटिव वेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द इंडिपेंडेंट ईस्ट ऑफ सी। ठीक है, सिमिलरली डी जो है वो सी से वेस्ट और साउथ की तरफ है, मतलब डी नीचे है, तो डी का कोऑर्डिनेट इस एक्सेस से क्या होगा, इट विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ सी माइनस कंसेक्यूटिव ऑफ डी। सिमिलरली डी का ईस्ट क्या होगा, ये एक्सेस के नजदीक है सी से, सी का इंडिपेंडेंट ईस्ट माइनस डी का कंसेक्यूटिव वेस्ट। ठीक है, सो जनरल कंक्लूजन ये है कि नेक्स्ट पॉइंट का आप जो इंडिपेंडेंट पोजीशन डिफाइन करेंगे, अगर उसका लेटीट्यूड नॉर्थ में है तो प्रीवियस इंडिपेंडेंट के साथ उसको ऐड करना होगा। अगर किसी पॉइंट का लेटीट्यूड साउथ में है तो प्रीवियस पॉइंट के इंडिपेंडेंट नॉर्थ से वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिमिलरली अगर किसी पॉइंट का डिपार्चर ईस्ट के तरफ है तो प्रीवियस पॉइंट के साथ ऐड करना होगा, और अगर किसी पॉइंट का कंसेक्यूटिव जो डिपार्चर है वो सपोज वेस्ट के तरफ है तो प्रीवियस पॉइंट के इंडिपेंडेंट से वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, सो दिस इज द वे थ्रू विच वी हैव टू कन्वर्ट द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट इनटू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट्स व्हिच वी गॉट एट द आवर ट्यूटोरियल नंबर 5, the corrected consecutive coordinates। ठीक है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड सो ऑन अप टू पॉइंट जे, ये उसके हमारे पास करेक्टेड consecutive coordinates हैं।
अब देखें कुछ पॉइंट्स की जो लेटीट्यूड है वो नॉर्थिंग में है, कुछ पॉइंट की साउथिंग में है, डिपार्चर ईस्टिंग में है या वेस्टिंग में है, एंड वी हैव अ क्लोज ट्रेवर्स। इसको हमने करेक्ट किया हुआ है। इसकी करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि सम ऑफ नॉर्थिंग इज इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग एंड सम ऑफ ईस्टिंग इज इक्वल टू सम ऑफ वेस्टिंग। इनकी जो समेशन है, डिफरेंसेस हैं लेटीट्यूड के और डिपार्चर के, वो 0 है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इज आवर इंडिपेंडेंट नॉर्थ और ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट ईस्ट है। दिस इज आवर कॉमन ओरिजिन जो 0 0 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए के लिए एजम्पशन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल ए का इंडिपेंडेंट नॉर्थ 1500 फीट होगा और ए का जो इंडिपेंडेंट ईस्ट है वो 2500 होगा। ठीक है, इसको हम एज्यूम कर देते हैं। नाउ सी बी जो है, ये बी के पॉइंट्स हैं। बी ए से नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट के तरफ है कंसेक्यूटिवली। ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि बी का पोजीशन ए से क्या है, सी का पोजीशन बी से क्या है, डी का पोजीशन सी से क्या है। तो दीज आर दी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सॉरी कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। तो अब बी जो है ए से नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट के तरफ है, तो इस कॉमन ओरिजिन से उसका पोजीशन क्या होगा, इट इज फर्दरली टुवर्ड द नॉर्थ एंड ईस्ट। तो ए के नॉर्थ के साथ बी का नॉर्थ ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ए के ईस्ट के साथ बी का ईस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 1500 प्लस 594 इट विल बी 2094। सिमिलरली 2500 प्लस 106 तो इट विल बी 2606 हो जाएगा। नाउ सी जो है वो बी से नॉर्थ के तरफ है और वेस्ट के तरफ है। रिमेंबर वेस्ट के तरफ है, तो बी के नॉर्थ के साथ ये वैल्यू ऐड हो जाएगी 437 और बी के ईस्ट से 2606 से ये 386 जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज सी वेस्ट के तरफ है। तो वी विल गेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। नाउ डी जो है वो सी से साउथ की तरफ है और वेस्ट के तरफ है। साउथ की तरफ मतलब नीचे है। सो फ्रॉम द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ सी 334 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिमिलरली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ सी 2220 से ये 572 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वी विल गेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ठीक है, सिमिलरली ई जो है वो डी से साउथ और वेस्ट के तरफ है। अगेन ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने होंगे तो वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अब एफ जो है वो ई से साउथ और वेस्ट के तरफ है। अगेन दोनों सब्ट्रैक्ट करने होंगे। ठीक है, सो यू विल गेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। फिर जी जो है अगेन वो साउथ और वेस्ट के तरफ है, दोनों एफ से सब्ट्रैक्ट करने होंगे। ठीक है, मीन 1379 माइनस 519। सिमिलरली 999 माइनस 720। ठीक है, तो ये जी के इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। अब एच जो है, एच जी से साउथ और ईस्ट के तरफ है, साउथ और ईस्ट के तरफ है। तो 859 माइनस 404 एंड 279 प्लस 262 बिकॉज वो ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट वाला प्लस होगा। सो यू विल गेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच। सिमिलरली आई जो है वो एच से नॉर्थ के तरफ है। ठीक है, और ईस्ट के तरफ है, तो ये दोनों जो है वो एच के इंडिपेंडेंट के साथ ऐड होंगे। तो यू विल गेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई। अब जे जो है, जे आई से साउथ के तरफ है और ईस्ट के तरफ है। तो जे के नॉर्थ आई के नॉर्थ से ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये उसके साथ प्लस हो जाएगा। तो वी विल गेट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशन जे विच इज आवर लास्ट स्टेशन। नाउ सी हियर, ए का जो पोजीशन है विच इज 519 और 19, ये जे से ए का पोजीशन होता है। जिस तरह हम बी से ए डिफाइन करते हैं, सी से बी डिफाइन करते हैं, डी से सी डिफाइन करते हैं, ई से डी डिफाइन करते हैं, इस तरह जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो जे जो है वो आई से डिफाइन होगा, ए जो है वो जे से उसका पोजीशन डिफाइन होगा कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में। तो अब देखें जे के कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 980 और 2519 है।
तो अब अगर हम फाइंड करते हैं ए के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो स्टार्ट में हमने एज्यूम किए थे, लेकिन अगर यहाँ पे हमने इसको फाइंड करना होगा, अगर यहाँ पे हमने फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे? देखें, ए जो है वो जे से नॉर्थ की तरफ है और वेस्ट की तरफ है, तो जे के नॉर्थ के साथ ये वैल्यू ऐड करेंगे, जे की ईस्ट से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हियर यू कैन सी अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू विच यू हैव एज्यूम्ड एट द स्टार्ट. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के लिए पहले हम एक कॉमन ओरिजिन ले लेते हैं, उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 0 होंगे. किसी भी पॉइंट के लिए आप जो है एज्यूम्ड कर लें. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ए के लिए एज्यूम किया है. फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप जो फाइंड करेंगे वो अगर उसका लेटीट्यूड नॉर्थ में है तो वो प्रीवियस के साथ ऐड होगा, अगर उसका लेटीट्यूड साउथ में है तो वो प्रीवियस से सब्ट्रैक्ट होगा. सिमिलरली अगर किसी पॉइंट का डिपार्चर ईस्ट में है वो प्रीवियस के साथ ऐड होगा, और अगर किसी पॉइंट का डिपार्चर वेस्ट में है तो वो प्रीवियस से सब्ट्रैक्ट होगा. एंड वी हैव अ क्लोज ट्रेवर्स, इसको हमने करेक्ट किया हुआ है, जिसकी जो डिफरेंसेस है लेटीट्यूड और डिपार्चर के वो 0 है. तो अगर आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट लेके वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं तो यू विल गेट द सेम वैल्यू. ठीक है, सो नाउ दीज आर द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज द पर्पस या दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे. कि उसमें हम क्या करते हैं, वी आर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. आइदर इट विल बी द रिलेटिव पोजीशन या इट विल बी द कंसेक्यूटिव पोजीशन और इट विल बी इंडिपेंडेंट पोजीशन या एब्सोल्यूट पोजीशन. इन सारे पॉइंट्स को अब हमने इस कॉमन ओरिजिन से डिफाइन की है. इनकी जो पोजीशन है ये हमने एक कॉमन ओरिजिन से डिटरमाइन की है. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड दी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. अब पूरा ट्रेवर्स जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, नॉर्थ और ईस्ट में. ठीक है, नाउ दी लास्ट पॉइंट विच इज आवर की ऑब्जेक्टिव, दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ एरिया ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स. तो हमारा जो एरिया है जिसका हमने ट्रायंगुलेशन सर्वे किया हुआ है और सारी कैलकुलेशंस की हैं, एंड एट द एंड वी गॉट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. अब इन कोऑर्डिनेट्स की बेस पे हमने उस ट्रेवर्स का जो है एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो दीज आर द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स विच वी हैव डिस्कस्ड. ये हमारे पास आ गई सारे पॉइंट्स के फ्रॉम स्टेशन ए अप टू स्टेशन जे और दोबारा स्टेशन ए, बिकॉज क्लोज ट्रेवर्स हैं तो अगर ए से आप स्टार्ट लेंगे तो वापस ए पी ही आएंगे. तो ये सारे पॉइंट्स के हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं. नाउ बेसिकली हम जो एरिया कैलकुलेट करते हैं उसके हमारे पास 3 मेथड्स हैं. वन इज़ कॉल्ड एरिया फ्रॉम लेटीट्यूड एंड डबल मेरिडियन डिस्टेंसेस. एक हमारे पास जो दूसरा मेथड है दैट इज़ एरिया फ्रॉम डिपार्चर्स एंड टोटल लेटीट्यूड. और तीसरा जो मेथड है विच इज़ एरिया फ्रॉम दी कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम दी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. तो ये तीनों मेथड से आपके पास सेम रिजल्ट्स आएंगे. इन 2 मेथड्स में जो है कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स यूज़ होते हैं. फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड जो है इसमें कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स यूज़ होते हैं. थोड़े से कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं. थर्ड मेथड जो है ये मोस्ट सिंपल मेथड्स हैं अमंग दीज 3, और इसमें जो है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स यूज़ होते हैं एरिया को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ और एरिया जो हमारा रफ स्केच है बाउंड्री स्टेशंस हैं. तो सारे स्टेशंस के हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आ गए. दीज आर दी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 10 स्टेशंस. अच्छा, अब इस मेथड में हमने क्या करना है. इन दिस मेथड हर पॉइंट की ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है. फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ हैं, वाई एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस हैं. ठीक है, तो y1 सपोज दिस इज y1, ये हमारे पास जो है y2 है, y3 है एंड सो ऑन अप टू हियर. सिमिलरली लेट ये हमारे पास x1 है फर्स्ट पॉइंट जो है, फिर x2 है, फिर x3 है एंड सो ऑन. अच्छा, नाउ y1 मल्टीप्लाइड बाई x2, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. y1 मल्टीप्लाइड बाई x2 तो यू विल गेट दिस वैल्यू. सिमिलरली y2 मल्टीप्लाइड बाई x3 यू विल गेट दिस वैल्यू. ठीक है, जो सेकंड वैल्यू है. y3 मल्टीप्लाइड बाई x4 तो ये वैल्यू आ जाएगी. y4x मल्टीप्लाइड बाई x5 दिस वन ये आपके पास आ जाएगा. रिमेंबर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं y1 विद x2, y2 विद x3, y3 विद x4, y4 विद x5, सिमिलरली y5 विद x6, y6 विद x7,
y7 विद x8, इस तरह सारी जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे हमने ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 वो यहाँ पे लिखते हैं, x2 मल्टीप्लाइड बाई y3 वो यहाँ पे लिखें, x3 मल्टीप्लाइड बाई y4, ठीक है, वो यहाँ पे लिखें। सिमिलरली x5 मल्टीप्लाइड बाई y6, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। y1 मल्टीप्लाइड बाई x2, y2 मल्टीप्लाइड बाई x3, ये कॉलम आ गया हमारे पास। फिर x1 मल्टीप्लाइड बाई y2, x2 मल्टीप्लाइड बाई y3, x3 मल्टीप्लाइड बाई y4, ये कॉलम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको सम कर लें और इसको सम कर लें, यू विल गेट दीज वैल्यूज़, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉलम हमारे पास आया हुआ है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सेकंड कॉलम जो है इनको सम ऑफ कर ले, तो यू विल गेट दिस वैल्यू। नाउ द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज, रिमेंबर इनका जस्ट डिफरेंस ले ले, जो लार्जर वैल्यू है वो स्मॉलर वैल्यू लार्जर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर ले, तो यू विल गेट द 2 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रेवर्स। ये जो हमारा ट्रेवर्स है इसका एरिया आपके पास आ जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा। रिमेंबर ये जो हमारे मल्टीप्लिकेशंस है ना, इनका सम ले लें, फिर इन दो सम का डिफरेंस ले लें, सो इट विल गिव यू 2 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रेवर्स। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रेवर्स इन स्क्वायर फीट। ये हमारे जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं ये फीट में है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये स्क्वायर फीट में होंगे, इनका जब हम डिफरेंस लेंगे ये फिर स्क्वायर फीट में होगा, फिर हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो यू विल गेट 1956,491 स्क्वायर फीट जो है वो ये एरिया है, ठीक है। अब इसको अगर हमने प्रोफेशनल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 43 इसको एकड़ में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 43,560 स्क्वायर फीट जो है वो 1 एकड़ में होते हैं। 43,560 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 एकड़। तो इस वैल्यू को हम 43,560 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द एरिया इन एकड़ विच इज अबाउट 44.91 एकड़, ठीक है। सो वी गॉट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, इसको सम ऑफ कर लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, यू विल गेट 2 टाइम ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रेवर्स। फिर इस एरिया को 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास ये जो ट्रेवर्स है इसका एरिया आ जाएगा, एंड देन वी कन्वर्ट इट इनटू एकड़। सिंपली 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर की ऑब्जेक्टिव विच वी गॉट फ्रॉम द ट्रायंगुलेशन सर्वे, कि हमारा जो एरिया था उसका हमने ट्रायंगुलेशन सर्वे किया, फिर उसकी हमने जो जितनी भी कैलकुलेशन है कंप्यूटेशन है उसको हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। एंड एट द इन वी गॉट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, और फिर उससे जो है हमने एरिया कैलकुलेट किया। तो ये जो सारा डेटा होता है इसको हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कॉलम होते हैं, फिर ऑब्जर्व्ड एंगल्स होते हैं स्टेशंस के, फिर हम जो है उसकी करेक्शंस कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होल सर्कल बियरिंग होते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग होते हैं, लेंथ्स होते हैं, फिर उससे जो है हम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं, उन कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को फिर हम करेक्ट कर देते हैं, करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, और उससे जो है फिर हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये पूरा जो टेबुलेटेड फॉर्म है दिस इज कॉल्ड गेल्स ट्रेवर्स टेबल, इसको गेल्स ट्रेवर्स टेबल कहते हैं, जो पूरा इसका जो प्रोसीजर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल in which we have discussed the complete concept of the triangulation survey and the calculations the computations which are involved up to the determination of the area, ठीक है। So this was all about the triangulation and traversing. Thank you and best wishes.